Hello, welcome back to your online digital class. I am Deepak sir, and today we'll do the second part of the lesson the Lost Spring, class 12th CBSE board from your English book Flamingo. But before I start, I want to remind you to subscribe the channel, like the channel and press the bell icon. Thank you. I want to drive a car. Mukesh insists on being his own master. As we did in the previous chapter, that Sahib Alam was not happy to work for someone else. Here also Mukesh wanted to being his own master. I will be a motor mechanic, he announces. So Mukesh announces that he will work as a motor mechanic. Mukesh announce करता है, डिक्लेयर करता है कि वो एक मोटर मैकेनिक के रूप में काम करेगा. Do you know anything about cars? I asked. Remember the writer of the story, Anees Jung, and she asked that whether you know anything about cars. क्या तुम्हें कार के विषय में कुछ पता है? I will learn to drive a car. मैं कार चलाना सीख लूँगा. He answers. Looking straight into my eyes, his dreams looms like a mirage amidst the dust of street that fill his town Firozabad, famous for its bangle. So here he had a shine in his eyes like a mirage, like empty imagination, and the dust, the streets were full of dust, and that filled the town of Firozabad. Firozabad, as you all know, is famous for its glass work and bangles. अब यहाँ पे उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है जब उसको कार के विषय मालूम पड़ता है. ये एक चमक मृग तृष्णा की तरीके की होती है. मृग तृष्णा जब जो एक हिरन वो पानी की तलाश है ढूंढता रहता है और रेत में उसको दूर से जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो उसको लगता है यही पानी है, लेकिन वो पानी नहीं होता, बस एक उसकी इमेजिनेशन होता है, उसकी कल्पना होती है. एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज इन बैंगल मेकिंग. इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. Firozabad is a center of bangle making, and it's like there are glass blowing industry. Families have spent generation after generation, they have spent making bangle, welding glass, and it seems that they make bangles for the entire women in the world. फिरोज़ाबाद जो अपनी बैंगल चूड़ियों के लिए मशहूर है, कांच के काम के लिए मशहूर है, जहाँ पे कई पीढ़ियों से यही काम होता है, पीढ़ियाँ कई यही काम करती रही हैं और ऐसे लगता है दुनिया भर की औरतों के लिए सारे चूड़ियाँ यहीं बनती हैं. मुकेश फैमिलीज अमंग देम, मुकेश की फैमिली भी उनमें से एक है. नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperature. So it's illegal. First of all, the child labor is illegal, and small children are working in the glass furnaces. जो बाल श्रम कराने का ये एक अपराध है, और जहाँ पे बड़ी बड़ी भट्टियाँ जलती रहती हैं उनमें बच्चे काम करते हैं. इन डिंगी सेल्स मीन्स लाइक डार्क सेल्स, छोटे छोटे कोठरियाँ सी बनी जिसमें वो लोग काम करते हैं. विदाउट एयर एंड लाइट, जहाँ पे ना हवा है और ना ही रोशनी है. That the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours after losing the brightness of their eyes. And अगर उन लोग को पता चल जाए कि अगर ये लॉ एनफोर्स कर होता है, जैसे कि बहुत सारे लॉ हम लोग के देश में एनफोर्स होते नहीं, बनते हैं लेकिन उनका पालन नहीं होता है, और अगर ये पालन हो तो करीब 20,000 बच्चे जिन्होंने जो एक इसी प्रकार से घरों में रह रहे हैं, जिनकी आंखों की रोशनी ख़त्म हो चुकी है भट्टियों में काम करते करते, जिसमें बहुत ही शीशा चमकदार होता है, और वो शायद सारे फ्री हो जाएंगे. मुकेश आइज बीम्स एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम. मुकेश की आंखों में एक चमक आ जाती है जब वो इसको अनीस जंग को लेकर अपने घर जाता है. विच ही प्राउडली से इज बीइंग रीबिल्ट, एंड ही वेरी प्राउडली डिक्लेयर्स दैट द हाउस इज बीइंग रीबिल्ट. वो बहुत ही घमंड से कहता है उसका घर दोबारा बन रहा है. वी वॉक डाउन stinking lanes choked with garbage, past homes that remained hovels with crumbling walls. So they went past the roads which had a foul smell, bad smell, which were blocked with garbage, and past homes that remains hovel. The homes were broken
and they were in a shabby condition, and they were very small, and with the wobbly doors means weak doors, no windows at all. तो वो लोग पास करते हुए जाते हैं कि उस जगह से जहाँ से वो लोग उन घरों से सामने से निकलते हैं जो घर टूटे फूटे होते हैं, सड़कों में बहुत बदबू होती, कूड़ा इकट्ठा रहता है, उनसे निकल के जाते हैं। घरों में दरवाजे थे, कमज़ोर थे, खिड़कियाँ थी नहीं, अंधेरा रहता था। क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन प्रीमीवियल स्टेट, और ऐसा लग रहा था कि जानवर और इंसान इस तरह से घुल मिल के साथ साथ रह रहे थे जैसे कि बहुत जब मनुष्य की शुरुआत हुई थी पृथ्वी पे उस स्टेज में रहते थे, वैसे ही लग रहा था। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, बैंग्स अ wobbly iron door with his foot. So he stops at the door of a one house, and the door has a very weak the house had a very weak iron door. He stops there, and then he kicks the door with his leg. वो घर के पास रुकता है, छोटा सा घर होता है और जिसके दरवाजे लोहे के बने होते हैं लेकिन बहुत कमज़ोर होते हैं, वो उनको पैर की ठोकर से खोलने की कोशिश करता है। In one part of it, thatched with dead grass, is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. अब एक तरफ एक भट्टी सी बनी थी जिसमें कि बड़ा सा बर्तन चढ़ा था, उस पर बन रहा था पालक मालूम है ना, पालक उबल रहा था उसमें। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, और बड़ी बड़ी प्लेट्स रखी थी, द वेरी बिग प्लेट्स वर मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, वर केप्ट देयर, एल्यूमिनियम की प्लेट्स रखी थी। आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल इन विच द वेजिटेबल विच वर चॉप्ड वर केप्ट, जिसमें कटी हुई सब्जियां रखी हुई थी। अ फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, एक कमज़ोर सी औरत महिला एक पूरे घर के लिए शाम का खाना बना रही थी। थ्रू आईज फिल्ड विथ स्मोक शी स्माइल्ड, आँखों में बिल्कुल ऐसे धुआं भरा हुआ है, फिर भी मुस्कुरा के कहती है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। Not much older in years, she has begun to command respect as the bahu, the daughter-in-law of the house. So she is not very old. She is not very big in age, but because she is the bahu of the family, the daughter-in-law of the family, so she is regarded and being respected. चूँकि वो ज़्यादा उम्र उसकी है नहीं चूँकि, लेकिन फिर भी चूँकि एक कस्टम होता है, बहू है तो उसका वैसा ही आदर किया जा रहा है। So she is in charge of 3 men. She is in charge of 3 men. One is Mukesh, the other is his elder brother and his father. तो वो 3 लोग इन चार्ज है, मुकेश, उसके बड़े भाई और उसके फादर की। When the elder man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil close to her face. So when the older man is Mukesh and his elder brother's father. When he enters, she rushes behind a broken wall and brings her veil. Veil means घूंघट अपने चेहरे पे ले आती है, एक टूटी दीवार के पीछे चली आती है। It's a symbol of respect. It's a sign of respect. Respect देने के लिए उनको। As custom demand, daughter-in-law must veil their faces before male elders. As I told you, daughter-in-law, that was a custom. It's still in custom. It's a very customary thing that daughter-in-law are supposed to veil their faces. अपने चेहरे पे घूंघट उनको डालना पड़ता है जब भी कोई मेल घर का या फिर कोई भी बड़ा आदमी घर में आता है। In this case, the elder is an impoverished bangle maker. एक गरीब बैंगल मेकर जो है, जो उन लोग के पिता है, वो ही एक एल्डर है घर पे। Despite long years of hard labor, first as a tailor, then a bangle maker, he has failed to renovate a house, send his 2 sons to school. All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. So he has done a lot of hard labor. Despite of doing a lot of hard labor, he failed to do anything else. He failed to send his sons to school, both of the sons to school, and he failed to renovate the house again, and means to renovate means to restore the good condition, and the only thing what he had given to his son is the art of making bangles. बहुत मेहनत करने के बाद भी वो ना अपना घर को ठीक से रख पाया, ना अपने बच्चों को स्कूल भेज पाया। क्या कर पाया, तो वो केवल उन दोनों बच्चों को उसने वो दिया जो उसने सीखा था अपने दादा परदादा से, चूड़ी बनाने की कला। इट इज़ हिज करम, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंड मदर। तो मुकेश की ग्रैंड मदर यहाँ पे कह रही है उनके कर्म है, जो उनकी किस्मत में लिखा था, दिस इज ऑल दैट।
Who has watched her husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles? So who has seen her husband going blind because of the dust coming out from polishing the gold ग्लास ऑफ बैंगल्स? तो उन्होंने अपने पति को अंधा होते देखा, उनकी रोशनी जाते देखा है जब वो पॉलिश करते रहते। ये पॉलिश करते 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 आंखों की रोशनी धीरे धीरे मध्यम होकर ख़त्म हो जाती है। कैन अ गॉड गिवन lineage ever be broken? So she has, here we can say that they are God fearing people as well, and she believes in God, and she believes that the lineage made by the God, जो किस्मत ने ईश्वर ने लिखा है उसको कौन बदल सकता है, ऐसा मानना बहुत लोगों का, हम सबका भी मानना ही है। She implies born in the caste of bangle maker. Remember, born in the caste of a bangle maker. So there is no caste like bangle maker. You cannot like identify a person by his profession, और यू कैन कास्ट अ पर्सन बाय हिज प्रोफेशन। सो यहाँ पे ये बात गौर करने वाली है, बॉर्न एज अ इन द कास्ट ऑफ अ बैंगल सेलर। कास्ट उसकी कास्ट नहीं थी बैंगल सेलर की। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, तो दे हैव नॉट सीन एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम बैंगल्स इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउसेज। हर घर में, आंगन में और हर दूसरे घर पे बैंगल्स ही थी। एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद की हर गली मोहल्लों में चूड़ियाँ ही बन रही थी। Spiral of bangles, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the 7 colors of the rainbow. Rainbow के सातों रंग से की तरह से हर कलर की बैंगल्स। You people know bangles come in so many colors, इतने अलग अलग कलर्स में आते हैं। They look so beautiful, और कितनी अच्छी लगती हैं वो। Lie in the mounds in unkempt yards. So they were kept, there were hills of bangles, and they were kept like this only, neglected and ignored. But in fact they were not ignored, they'll be sent to the market. और वो एक टीलों के रूप में रखी थी, किनारे रखी हुई थी। Are piled on 4-wheeled hand cart pushed by young men along the narrow lanes of a shanty town. तो उनको 4 व्हील जो कार्ट होती हैं, जैसे जो लोग खुद खींचते हैं गाड़ी, और उसमें उसको यंग लोग लेके चलते हैं, जो वहाँ की यंग जनरेशन है, बूढ़े लोग ये काम नहीं कर सकते खींचने वाला, और जो छोटा सा टाउन है उससे लेके निकलते हैं। इन द डार्क hutments next to the line of flames, flickering oil lamps, sits boys and girls with their fathers and mothers. So in the dark and in the evening, hutments mean the resident of those who live in a hut. Next to the line, the oil lamps in which the light is flickering, boys and girls, small boys and girls sit with their fathers and mother, welding pieces of colored glass into circle of bangles. So they keep on welding, joining pieces of colored glass into सर्कल्स ऑफ बैंगल। तो शाम के समय जब अंधेरा हो जाता है तो यही छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता के साथ बैठ के इन ग्लास को, एक दिए की रोशनी में इन ग्लास को, टुकड़ों को जोड़ के चूड़ियाँ बनाते हैं। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। तो देयर आइज आर मोर एडजस्टेड बिकॉज दे वर्क, दे आर इन अ हैबिट ऑफ वर्किंग इन सच कंडीशन। उनकी आदत हो गई इस कंडीशन में वर्क करने की, तो उनकी आँख अभ्यस्त हो चुकी हैं। That is why they often end up losing the eyesight before they become adult. So before they become adult, they always lose their eyesight. So ऐसा उनके साथ डर बना रहता है कि उनके आंखों की रोशनी उनके बड़े होने से पहले पहले ही ख़त्म हो जाती है। Savita, a young girl in dark pink dress, sit alongside an elderly woman. Savita एक लेडी का नाम है जो अपने बहुत डल कलर के कपड़े, पिंक कलर के ड्रेस पहने हैं, एक एल्डरली अपनी से बड़ी उम्र की लेडी के साथ बैठी हुई है। सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लासेस, शी इज जॉइनिंग पीसेज ऑफ ग्लासेस, ग्लास के पीस वो जॉइन कर रही है। एज अ हैंड मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग ऑफ अ मशीन, वो टोंग्स की तरह से, उनको टोंग्स वाले ना चिमटे की तरीके से उसके हाथ काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि ये सारे लोग अभ्यस्त हैं इस काम करने को, भले छोटा बच्चा हो, लेडी हो, जेंट्स हो, सब लोग इस काम में इतने अभ्यस्त हैं कि उनको बहुत अंतर नहीं पड़ता। अब आई वंडर इफ शी नो द sanctity of the bangle she helps make. Up here the author is wondering, pondering whether she knows the sanctity, means the holiness of the bangle. इस बैंगल की पवित्रता, इस बैंगल की जो महत्व है, क्या उस लेडी को पता है जो बना रही है। इट सिंबलाइज एन इंडियन वुमेन सुहाग, वो सिंबलाइज करता है, वो प्रतीक है एक भारतीय महिला के सुहाग। Auspicious in marriage, auspicious has many meaning. Auspicious is pure also, auspicious is important also, and something that is very important. एक ये marriages और and for a future use and success in future as well. तो ये भविष्य में
एक मतलब शादी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, and it will definitely come to her. It's even she is going to get married very soon, and when her head is draped with a red veil, and when a red veil will cover her head, और उसकी शादी भी जल्दी होगी जब उसके सर पे लाल रंग का घूंघट पड़ जाएगा. Her hand dyed red with henna, और उसके हाथों में मेहंदी लग जाएगी लाल रंग की. And red bangle rolled into her wrist, और उसके wrist में she'll wear red bangles, वो red bangles पहनेगी. She will then become a bride. Then she'll become a bride. वो तब दुल्हन बन जाएगी. Like the old woman beside her who became one many years ago, and she'll exactly become like the old woman who is sitting next to her who got married years ago. जो उसके बगल लेडी बैठी है बूढ़ी, जिसकी शादी कई साल पहले हो गई थी, वो भी वैसी ही बन जाएगी. She still has bangles on her wrist, but no light in her eyes. So that lady still has the bangle. She is married, but still there is no light in her eye, no gleam. Light here means hope. जो लेडी बैठी है उसकी आंखों में कोई चमक नहीं है, लेकिन हाथों में बैंगल्स हैं. एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया. तो she says that she has not eaten a satisfying meal in her entire life. मतलब पूरे जीवन में एक समय उसने पेट भर के खाना भी नहीं खाया. She says in a voice drained of joy, and there is no joy in her voice. उसकी आवाज़ में कोई भी खुशी नहीं है. She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. This is what I told you. She hasn't enjoyed one full meal in her entire life. That's what she has reaped, and this is what she has reaped. यही उसने कमाया है. Her husband, an old man with a flowing beard, says, "I know nothing except bangles." Her husband is having a long beard, and he says that he know nothing except bangle. उसके हस्बैंड जो उनके पति हैं उनकी लंबी दाढ़ी है, और वो कहते हैं उन्होंने बैंगल बनाने के अलावा कोई काम सीखा ही नहीं, और इसी से वो अपना घर चलाते रहे, और इसी से उन्होंने अपना घर बना लिया, और जिसमें उनकी फैमिली रह रही है. Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. So just hearing to what he said means that he had achieved. He has achieved something what many have not achieved at all. They were poor. Remember, they were poor people, and to have a house of their own is something very big for them. So that उनके लिए अपना घर होना उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ थी. That's why he is very proud of that achievement. वो उस achievement के लिए बहुत गर्व महसूस कर रहा है कि उसने अपना घर बना लिया. He has a roof over his head, and he has a roof over his head. उसके हेड पे एक रूफ है, उसके सर के ऊपर एक छत है, मीन्स रहने का घर है. The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangle, not even enough to eat, rings in every house. So this cry of grief that they don't have money to do anything except making bangle is a very customary thing in all those houses. It's a very something very prevalent in all those houses which are there. जो उनके पास बैंगल बनाने के अलावा किसी काम के लिए पैसे नहीं है, ये एक दुख, ये निराशा वहाँ जितने घर थे सब में बहुत ही आम था. द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ द फादर. और जो यंग मैन थे वो अपने फादर्स का अपने वही रोना रोते थे कि मेरे पास कुछ है ही नहीं. Life has moved with time, it seems, in Firozabad. Within the passage of time, everything has started moving. हर चीज़ चल रही है फिरोज़ाबाद में समय के साथ. Years of mind numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. So years they have passed doing all these sort of things, and they have become very insensitive towards the feelings. There is no one who could start something different, who could take an initiative on, and they can't even dream of something new. तो उनकी जो सोचने की क्षमता है वो ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल सुन्न हो गया उनका दिमाग इतने साल की मेहनत से. अब ना कुछ नया सोच सकते, ना नया कोई सपना देख सकते हैं. Why not organize yourself into a cooperative? I asked a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. So here again the writer asked one of the group who were there, a young man of a group, that why don't you organize into a cooperative? We have cooperative or organize sort of organizations for different sectors. Okay, so if you form an cooperative, definitely you can cooperate with each other and can do something for your betterment. तो उसने कहा आप कॉपरेशन एक कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते हैं. उसने जो राइटर है उन्होंने पूछा एक नवयुवक से
वो सारे लोग जो कि एक मिडिल मैन जो बिचौलिया जिनको कहते हैं हम लोग, ओके, एंड जो आप दो लोगों के बीच के जो काम होता है वो खुद कराना चाहता है। अब जहाँ पे एक बनाने वाले हैं और एक खरीदने वाले हैं, इन लोगों के बीच में जो बिचौलिए होते हैं, जो मिडिल मैन होते हैं, वो सारा पैसा जो प्रॉफिट होता है ज़्यादा से ज़्यादा खुद रख लेते हैं और इन लोगों को कम मिलता है। दैट्स वाई दे कीप ऑन सफरिंग थ्रू आउट द लाइफ। Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police. And he said that if we get organized, then also we will be maltreated or ill-treated by the policemen, or they'll catch us, beaten and dragged to jail. They'll beat us and drag us to the jail for doing something illegal, and they will jail us for doing something illegal. And like making an organization is something illegal for them. This is what they were told by the people who were there, especially the middlemen. और पुलिस वाले उनको पीटेंगे और किसी भी गलत इल्ज़ाम में भर के जेल में भेज देंगे। देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, उनके बीच में कोई नेता नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, कोई उनको चीज़ें अलग तरीके से बताने वाला, दिखाने वाला, समझाने वाला नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति को एक राह दिखाने वाला होना चाहिए। दैट शुड बी अ टॉर्च बियरर, ओके, हु इज डेफिनेटली गोइंग टू शो यू द राइट वे। Their fathers are as tired as they are, so they are also tired as their fathers. Even the fathers are tired as their son, and the son are also tired as their father. Father और बेटा बाप दोनों बहुत थके हुए हैं। They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. So it's a sort of a coil. Okay, so it's a circular movement. They are poor. They don't have any sort of a interest. Apathy means a sort of a, in fact it means hatred as well, it means lack of interest as well. So here we will not take it as a hatred, we will say a lack of interest towards a proper life, to greed, and they have become greedy for money because they don't have money, and whatever they want, that needs a lot of money, and for they need, and here the poetess has the writer has called them greedy because they have the greed for money, for survival. They need something for survival, and to injustice, and the injustice done to them, injustice done to them by the government as well, and by the middleman. And we people are also responsible, because we read, we study, and we know about them, but we never want to do anything for them. Listening to them, I see two distinct worlds. So there are two distinct worlds, two different worlds for the author. One of the family caught in a web of poverty. One is a family which is caught in a web of poverty. और एक दो अलग अलग दुनिया है। एक दुनिया जिसमें एक परिवार, सारे परिवार गरीबी के एक जाल में बुने हुए हैं, फंसे हुए हैं। Burden of the stigma of caste in which they are born. They have a burden of stigma. Stigma means mark of the caste, a sort of a symbol of a caste in which they are born. As we started in the beginning, it was said that the caste, they were born in a caste of a bangle seller. तो यहाँ पे जिस कास्ट में उनका जन्म हुआ है वो उसी में, और उनका मानना, उनका जन्म यहाँ पे हुआ है, उनको यहीं रहना चाहिए और यहाँ से नहीं निकलना चाहिए। जैसे कि हर प्रोफेशन में होता है, बहुत से लोग यही चाहते हैं, जो अरे मेरे दादा परदादा कर रहे हैं मैं वही करता रहूँगा। द अदर a vicious circle of saukars and middlemen. The other circle is of saukar who lend them money, give them money on a high rate of interest. That's why it becomes very difficult. That's why the writer has called them greedy. They want more and money to satisfy their needs, to satisfy their hunger, and to pay money to these saukars and this middleman. तो उनको पैसा देना पड़ता है। अब वो लोग फंसे हैं एक सर्कल में जिसमें साहूकार हैं, मिडिलमैन हैं, बिचौलियाज हैं। द पुलिसमैन, पुलिस वाले भी उनको परेशान करते हैं। द कीपर्स ऑफ लॉ, जो लॉ बनाते हैं, जो लॉ का पालन करते हैं, ये भी उनको परेशान करते हैं। द ब्यूरोक्रेट्स आर द ऑफिसर्स एंड द पॉलिटिशियन। और पॉलिटिशियन जो अपने भले के लिए जब भी उनका इस्तेमाल करना होता है, उनको राशन कार्ड बनवा देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। जैसे उनका मकसद पूरा होता है, चुनाव खत्म होते हैं, इनकी ज़िंदगी वैसे ही हो जाती है और ये लोग अभ्यस्त हैं जीवन का। टुगेदर दे आर इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैनॉट पुट डाउन। तो टुगेदर दे हैव प्लेस द बर्डन ऑन द चाइल्ड दैट ही कैनॉट पुट डाउन। बच्चे के सर पे उन्होंने इतना बोझ रख दिया है। बोझ मतलब ये नहीं कि कुछ उठा कर रख दिया, बोझ है उसके, बच्चा एक पैदा होने के बाद ही उसको काम करना पड़ता है। जिस बचपन को वो इंजॉय करना चाहता है, वो कहीं पे एज अ चाइल्डहुड इज अ गोल्डन पीरियड ऑफ अ मैन्स लाइफ,
लेकिन वो उनके लिए गोल्डन पीरियड नहीं होता है, वो लोग परेशान रहते हैं। बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर। और वो जब वो अवेयर होता है, जब उसको पता चलता है, जब उसको समझ आती है, तो वो अपने फादर की तरह वो काम करने लगता है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, और कुछ और काम करना एक बहुत ही साहसिक कदम होगा, और इतना साहस किसी में है नहीं। कौन पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स, मिडलमैन, साहूकार, पुलिसमैन से झगड़ा मोल लेगा? एक गरीब आदमी तो कतई नहीं करेगा ऐसा। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और डेयरिंग उनके जीवन का एक हिस्सा नहीं है, बड़े होने का हिस्सा नहीं है। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर, और जब उसको उनको राइटर को दिखता है कि मुकेश में कुछ अलग करने की इच्छा है, वो बैंगल बनाना चाहता है, वो कार चलाना चाहता है, तो उनको बहुत खुशी होती है। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, वो कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, वो दोबारा कहता है। ही विल गो टू अ गैराज एंड लर्न, वो एक गैराज में जाएगा और सीख जाएगा मोटर चलाना। बट द गैराज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, और गैराज उसके घर से बहुत दूर है। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट, वो फिर कहता है कि मैं चल के चला जाऊंगा। अब वो किसी भी मुसीबत से डर नहीं रहा है, वो हर मुसीबत का सामना करना चाहता है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? अब नाउ द राइटर आस्क दैट बॉय मुकेश दैट वेदर ही हैज ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, उससे पूछती है कि क्या वो हवाई जहाज भी चलाना चाहता है। ही इज सडनली साइलेंट, वो अचानक चुप हो जाता है। नो, ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, वो कहता है नहीं नहीं, अब वो जमीन की तरफ देखने लगता है। इन ए स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बैरेसमेंट दैट हैज नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट। अब उसके एक उसमें एक एम्बैरेसमेंट है, वो शर्म तो आ रही है, लेकिन वो रिग्रेट नहीं कर रहा, पछता नहीं रहा। शर्म किस बात से आ रही है? कि शायद राइटर ने सोच लिया, कि उसको लगा कहीं राइटर उसका मजाक उड़ा रही है। ही थॉट दैट द राइटर इज मेकिंग फन ऑफ हिम, और दैट वाइज एम्बैरेस, उसको लगा कि ये एम्बैरेस, जैसे आप किसी गरीब बच्चे का क्यों कार चलाओगे, तो उसको लगेगा उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन वो रिग्रेट नहीं कर रहा। ही इज नॉट रिग्रेटिंग, वो पछता नहीं रहा है कि उसने अपने ड्रीम्स के विषय में बता दिया उसको, है ना, क्योंकि उसको लगा कार चलाने की बात सुन के उसने अचानक कह दिया क्या तुम प्लेन भी उड़ाओगे, तो वो उसको रिग्रेट नहीं, कहीं पे पछतावा नहीं इस बात का। हाँ, उसको शर्म आई कि शायद इनको लगा कि मैं कार कभी नहीं चला सकता हूँ। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार दैट ही सीज hurtling down the street of his town. His few aeroplanes fly over Firozabad. So he is looking down, and he is content to dream of car that he sees hurtling down the street of his town. So he is वो ड्रीम कर रहा है कार चलाने का, जो कि उसने अपने शहर की सड़कों पे कार चलती देखी है, लेकिन वो एरोप्लेन का सपना नहीं देख सकता, क्योंकि फिरोज़ाबाद में बहुत ही कम एरोप्लेन उड़ते हैं। थैंक यू, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, like the channel and press the bell icon. Thank you.